Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next class of biology. And in this class, we will learn about the heart and circulation process, the types of circulation, mechanism involved in the process of circulation, cardiac cycle, steps of cardiac cycle, heart rate and pulse rate in detail. Now let's begin with the structure of heart that we have already studied in the previous lecture. So according to that structure, heart has four chambers. दो उसके smaller chambers हैं जिनको हम कहते हैं atria, that is the left atrium and right atrium, and दो largest chambers हैं जिनको हम कहते हैं ventricles, that is right ventricle and left ventricle. अब आप देख रहे हैं this left side is indicated with the red color. So red color indicate pure blood and this blue color indicates the impure or deoxygenated blood. पूरी बॉडी से ब्लड थ्रू सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से एंड दैट इज हेड रीजन एंड नेक रीजन and from the lower body part, that is in inferior vena cava, that collects the blood and then drains into the right atrium. From the right atrium, then blood enter into the right ventricle. Is right ventricle say through pulmonary artery, then blood enter into the lungs, and from the lungs the blood becomes purified, and that in the form of purified blood then enters through the pulmonary vein into the left atrium. So from the left atrium, then blood enters into the left ventricle. This left ventricle is the largest chamber, which then distributes the blood to each and every part through aorta. Achha, keep one thing in your mind. The vessels that leaves the heart, they always are the arteries, and the vessels that enters the heart, they always are the veins. याद रखें, वो वेसल्स जो हार्ट में एंटर हो रही होंगी वो वेन्स हैं, द वेसल्स दैट लीव्स द हार्ट दे आर द आर्टरी. सिर्फ इस बेस पे हम सर्कुलेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हार्ट वर्क्स एज ए डबल पंप. डबल पंप क्या है? बिकॉज एट ए टाइम इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and it distributes oxygenated blood. So at a time ये डबल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव भी करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज लेस ऑक्सीजन. सो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज मोर ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन कहाँ से ब्लड में एंटर होगी? थ्रू लंग्स. अच्छा जी, it receives oxygenated blood from the lungs and transported to the heart, which then transported to all parts of the body. So heart is actually a pumping organ कि ये हार्ट ब्लड को रिसीव भी करता है और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है. सो इस रिसीविंग का प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. Keep one thing in your mind. Inside heart chambers, deoxygenated, that is impure blood, and oxygenated, that is pure blood, they are kept separated. है हमने जो हार्ट का स्ट्रक्चर भी देखा था कि दोनों लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स दे आर सेपरेटेड. Left atrium and left ventricle and right atrium and right ventricle, these all chambers are separated. There is very few chance that there is a mixing of blood. Otherwise mixing of blood is not possible because the oxygenated and deoxygenated blood, they are separated. अच्छा, मैकेनिज्म देख सकते हैं. मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है. अच्छा, मैकेनिज्म क्या है कि पूरी बॉडी पार्ट से थ्रू inferior vena cava and superior vena cava then blood enter into the right atrium. ठीक है. अच्छा जी, राइट एट्रियम से ब्लड एंटर होगा राइट वेंट्रिकल में, और कौन सा वेल्व होता है? ट्राइकस्पिड वेल्व. हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था हमने ट्राइकस्पिड को देखा, दैट हैज 3 फ्लैप्स, तो हमने इसको ट्राइकस्पिड कहा. अब ये कब ओपन होता है? जब राइट एट्रियम से ब्लड ने राइट वेंट्रिकल में आना है तो कौन सा वेल्व ओपन होगा? दैट इज ट्राइकस्पिड. अच्छा जी, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब याद रखें राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड है, ये पल्मनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन. लंग से थ्रू पल्मनरी वेन ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में. अच्छा, जब ये लंग से ये ब्लड जब ड्रेन होता है या ब्लड जब एंटर होता है तो कौन से वेल्व्स ओपन होते हैं? सेमील्यूनर वेल्व. सेमील्यूनर वेल्व ओपन होगा और जो पल्मनरी आर्टरी और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान है सेमील्यूनर वेल्व. सो दिस सेमील्यूनर वेल्व ओपन and the blood from the lungs
through the pulmonary vein enters into the left atrium. लेफ्ट एट्रियम से फिर कौन सा वेल्व ओपन होगा? बाइकस्फीड दैट हैज टू फ्लैप्स, और ब्लड एंटर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से और एओर्टा के दरमियान फिर सेमिल्यूनर वेल्व है, और दिस सेमिल्यूनर वेल्व देन ओपन्स एंड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा, और एओर्टा से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है थ्रू डिफरेंट आर्टरीज लाइक किडनीज एंड लिवर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेग रीजन, बिलो लोअर बॉडी पार्ट. So the arteries that carries pure blood, and these arteries then distribute the blood to each and every part of the body. अब देख रहे हैं कि वीना कैवास दोनों हैं. वीना कैवी हम इसको प्लूरल होता है, वीना कैवी इंफीरियर और सुपीरियर वीना कैवा, they both are responsible for collecting blood, and arteries they are meant for distributing blood. Now the types of circulation. सर्कुलेशन की दो टाइप्स हैं. एक सर्कुलेशन है जो हार्ट और लंग्स के दरमियान हो रही है, एक सर्कुलेशन है जो हार्ट और बॉडी सिस्टम्स के दरमियान हो रही है. सो द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज द पल्मनरी सर्कुलेशन. पल्मनरी का वर्ड जब भी आएगा वो दैट इंडिकेट्स कि कुछ लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन विच हार्ट एंड बॉडी सिस्टम्स आर इन्वॉल्व. अच्छा, जो पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है कि पल्मनरी सर्कुलेशन में याद रखें आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है और वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पल्मनरी सर्कुलेशन में ऑपोजिट है. पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या है, हम जैसा मैंने कलर इंडिकेट किया है, ब्लू कलर इम्प्योर के लिए है और रेड कलर प्योर के लिए है. ठीक है. अब हार्ट से लंग्स में थ्रू पल्मनरी आर्टरी जाएगा ताकि ये ब्लड प्यूरिफाई हो सके. इस लंग से थ्रू पल्मनरी वेन हार्ट में आएगा. मैंने अब आपको बताया था वो वेसल्स जो हार्ट में ओपन हो रही होती हैं वो वेन है. जो हार्ट से दैट लीव्स द हार्ट दे आर द आर्टरीज. ठीक है. सो हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट द सर्कुलेशन इज पल्मनरी. याद रहेगा. अच्छा जी, सिस्टेमिक देख लेते हैं. सिस्टेमिक में वही नॉर्मल रूटीन है. बिकॉज ऑल आर्टरीज हैव प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी. ऑल वेन्स हैव इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी वेन. ठीक है. सो पल्मनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फर्क याद रहेगा. सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी सिस्टम्स. अब पूरी बॉडी से बॉडी सिस्टम तक जाना कैसे है? थ्रू आर्टरीज. और पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट में आना है फॉर प्योरिफिकेशन थ्रू वेन्स. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड. ना देख लेते हैं कि सर्कुलेशन की टाइप्स क्या क्या है या कौन से ऐसे सर्किट्स हैं. अभी जो मैंने आपकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी ये उसी की थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. That is the right side of heart collects deoxygenated, that is impure blood from all body parts and then distributes to the lungs. और ये कहाँ से आता है? और इसमें दरमियान में जो एक पंपिंग ऑर्गन है that is the heart. While left side of the heart that collect oxygenated blood from the lungs, और lungs से फिर heart में, and from that impure blood from the heart to the each and every part of the body. अच्छा, circulation pulmonary हो that is between heart and lungs, and systemic circulation that is between heart and different body parts. ठीक है. इट्स अ नॉर्मल सर्कुलेशन. पल्मनरी थोड़ी ऑपोजिट सर्कुलेशन की टाइप है. अच्छा जी, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम हार्ट बीट किसे कहते हैं. अब हार्ट बीट क्या है? एक वक्त में हार्ट रिलैक्स भी हो रहा है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है. हार्ट रिलैक्स कब होता है? जब हार्ट ने ब्लड रिसीव करना होता है तो हार्ट इज इन अ रिलैक्सिंग पोजीशन. All chambers of heart they are in relaxed mode when they receive blood. ठीक है. जब ये सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा ब्लड लेकर आते हैं देन ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम, और इसी तरह लेफ्ट एट्रियम में जब लंग से आता है ब्लड. सो ये साइमल्टेनियस काम हो रहा होता है. दोनों एट्रिया एक ही वक्त में रिलैक्स करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स फिल द हार्ट and contraction of chambers then propels the blood out of the
हार्ट। ठीक है। The alternating relaxation and contraction make up the cardiac cycles। याद रहेगा। और एक हम कंप्लीट कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं, जिसमें alternating relaxation है and contraction that makes one heart beat। ठीक है। So the relaxation of heart and the contraction of heart, these processes occur simultaneously। और इस ऑल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अच्छा, हम देखते हैं कि इसकी हार्ट बीट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, कौन से स्टेप्स हैं, कौन से चैम्बर्स हैं जो रिलैक्स होते हैं और फिल होते हैं, और इसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है। अब इसमें अब देख लें कि कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट के 3 पार्ट्स हैं। क्या है, कार्डियक डायस्टोल। डायस्टोल इसकी वजह से इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायस्टली पढ़ते हैं। See, this cardiac diastole is actually the time of heart relaxation। इसमें दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं एंड दैट फिल द ब्लड इन एट्रिया। ठीक है। और ये रेस्टिंग टाइम होता है और इसका इसका जो दैट लास्ट फॉर अबाउट 0.4 सेकेंड्स। अच्छा, अब आप देख लें कि एट्रियल सिस्टली और वेंट्रिकल सिस्टली। सिस्टली इंडिकेट्स जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन है। अगर तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन है तो हम इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टली। अगर है वेंट्रिकल में है तो हम इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। ठीक है। जैसे ही ये एट्रियास फिल हो जाते हैं, देन द बोथ एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट और देन दे पंप्स द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है। दोनों पहले एट्रिया फिल हुए, पहले हार्ट रिलैक्सिंग मोड में उसने ब्लड कलेक्ट कर लिया। ठीक है। और एट्रिया भी रिलैक्स करें, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करें एंड दैट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स। अब हम देख रहे हैं कि एट्रिया, बिकॉज अब देखें एट्रिया दोनों स्मॉल चैम्बर्स हैं। ठीक है। अब एट्रिया स्मॉल चैम्बर्स हैं, दोनों जैसे ही इनमें ब्लड फिल हो जाता है, देन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट आता है, ब्लड आता है एंड दैट लास्ट अबाउट 0.1 सेकेंड्स। बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्लड एंड पंप द ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी, या लंग्स की तरफ जाएगा या बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा। सो आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राइट एट्रियम से ब्लड जाता है टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन और लेफ्ट एट्रियम से थ्रू एओर्टा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। सो अब आपको याद रहना कि क्यों क्यों ये दोनों लार्जेस्ट चैम्बर हैं, वेंट्रिकल्स दोनों लार्जेस्ट चैम्बर हैं, तो इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज 0.3 सेकेंड्स। ठीक है। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.3 सेकेंड। आपने देखा कि जो हार्ट का टाइम है रिलैक्सेशन 0.4 सेकेंड, और जो हार्ट का सिस्टली टाइम है दैट इज, अगर वो एट्रियल सिस्टली है या वेंट्रिकल सिस्टली है तो वो 0.1 और 0.3 है, प्लस दोनों को अगर हम करेंगे दैट मेक्स अ 0.4। सो 0.4 सेकेंड्स फॉर the diastole and 0.4 seconds for systole। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि अब ये लूप डूप साउंड, जैसे हम स्टेथोस्कोप से हम लूप डूप साउंड को करते हैं ना हार्ट बीट को चेक करने के लिए, आपने डॉक्टर के पास देखा होगा स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम हार्ट बीट चेक करते हैं। अब आप ये देखें कि हार्ट का डायस्टली टाइम या उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है और उसका सिस्टली टाइम या उसका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कितना है। अब आप देख रहे होंगे इसमें, देखिए 0.4 सेकेंड है, इसमें हार्ट रिलैक्स कर रहा है जिसे हम कहते हैं डायस्टली। ये वाला टाइम है जिसके अंदर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वो है जिसमें दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन डिस्ट्रीब्यूट्स द ब्लड, और ये जब एट्रिया करेंगे तो ब्लड कहाँ से एंटर होता है, फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। ठीक है। So 0.4 seconds for diastole and 0.4 second for systole। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। जो मैंने आपको बताया ना लूप डूप साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज, और कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं लूप। ठीक है। एंड व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स द सेमी-ल्यूनर valves close and डूप साउंड इज प्रोड्यूस। अब याद रखें कि हमने क्यों कहा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो एट्रियाज भी हो रहे हैं। हमने वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्यों हमने कंसीडर किया, बिकॉज एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इतनी माइन्यूट होती है, बिकॉज इसका जो चेम्बर है वो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाना है तो उसके में इतना उसका प्रेशर नहीं होता, इतना उसको
उसको टाइम या एनर्जी या उसमें नहीं लगता, सो उसका जो साउंड है वो इतनी कंसिडरेबल नहीं है। सो व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स द सेमिलुनर वेल्व क्लोज एंड डूब साउंड इज प्रोड्यूस। अब ये लूप डूब साउंड को हम इसको कैसे सुन सकते हैं? थ्रू द stethoscope. With the help of stethoscope we can heard this sound loop doop। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, अब देख लेते हैं कि हार्ट रेट और हम पल्स रेट क्या करते हैं। हार्ट रेट, तो हार्ट रेट हम क्या करेंगे कि 1 मिनट में कितना हार्ट बीट की रेट है। सो हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। और रेस्टिंग में आपने देखा होगा जब एक्टिविटी नहीं हो रही है, नॉर्मल हार्ट रेट होगा दैट इज 70 टाइम्स पर मिनट इन मेन एंड 75 टाइम्स इन वुमेन। लेकिन जैसे कोई एक्टिविटी है तो हार्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, एंड दैट फ्लक्चुएट इज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी और उसमें स्ट्रेस लेवल है। दीज टू आर द मेन फैक्टर्स है, एक्टिविटी लेवल एंड स्ट्रेस लेवल, जिस पे ये हार्ट रेट डिपेंड करता है। और अगर हमने कोई एक्टिविटी की है, हम भाग के आए हैं, हम चल के आ रहे हैं, तो हार्ट रेट डेफिनेटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू वी आर सिटिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग पल्स रेट। ठीक है, हम और पल्स हम कहाँ पे देखते हैं? आपने ज़्यादातर नॉर्मली देखा होगा कि पल्स रेट हम जो हमारी रिस्ट है उसमें हम फील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पल्स रेट इज एक्चुअली द हार्ट रेट, और दैट इंडिकेट्स कि अगर इफ़ यू हैव टेम्परेचर तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। जैसा नॉर्मली एक मिनट में 70 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन अगर 70 टाइम्स से ज़्यादा है दैट इंडिकेट्स कि यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव सम ट्रबल, यानी कोई टेम्परेचर है या कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सो हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग पल्स, और पल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज ड्यू टू द ब्लड इन द आर्टरीज। ठीक है, सो पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू इट, और ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की वजह से होता है। और पल्स को हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं? पल्स को हम वहाँ फील कर सकते हैं जहाँ आर्टरीज स्किन से बहुत क्लोज होंगी, और वो कौन सी पार्ट्स हैं? रिस्ट है, नेक है। ठीक है, नेक, ग्रोइन एरिया होता है जहाँ पे हिप का जब लेग का जो जॉइंट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ग्रोइन एरिया, या टॉप ऑफ फुट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली पीपल कहाँ पे इसको मेजर करते हैं? इन द रिस्ट। ठीक है, होप अब आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू make it clear for you. So I hope it will help you to learn lot about the heart and circulatory system. Thank you very much, and Allah Hafiz.